All students are requested to please switch your camera. All students are requested to please switch your camera before your face. Please switch your camera. Now I am going to teach you linear equation of class 9th mathematics. This is the division part of the linear equation. Once again, we have to study about linear equation in two variables in class 9. First of all, we introduce you a linear equation in one variable and two variable separately. What is linear equation? First of all, we have to understand what is linear equation. An equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a not equal to 0, b not equal to 0. Why here a not equal to 0 and b not equal to 0? An equation of the form this much where a not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y. This is the most important question. Why a is not equal to 0 and b is not equal to 0 here? If a equal to 0, then what? Can you answer it? Anyone? Why a b not equal to 0? Tell me. Sakshi Raj. Yes, Can you sir. reply? Yes. सर नहीं पता, बता दीजिए. 1 minute. Anupriya, do you know? Anupriya, do you know why a not equal to 0 and b not equal to 0? Anyone? Khushi Mishra? Can you सर answer? क्योंकि ए और बी Yes. क्योंकि ए और बी रियल नंबर है. ए और बी रियल नंबर है, तो जीरो क्यों नहीं होंगे? क्या जीरो रियल नंबर नहीं होते क्या? जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर. तो वाई ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0. नेहा आनंद, कैन यू टेल? Do you know? नो सर. No. Listen. If a equal to 0, then a in 0 into x plus b into y plus c equal to 0 or a equal to 0. This becomes to by plus c equal to 0. Here only one variable y. Here only one variable y. So this is linear equation in one variable. But here written this is a linear equation of in two variable. This is linear equation in two variable. Don't write. Listen carefully. Here written this is a linear equation of two variable in two variable, but this is a linear equation in one variable y. We can't say here this is linear equation of two variable because x is eliminated here. X has eliminated here. So a count 0. If b put b equal to 0 or b equal to 0, equation again becomes ax plus 0 into y plus c equal to 0. This implies ax
plus c equal to 0. This is a linear equation in one variable, once again, but variable is here x. This is linear equation of one variable in y. This is linear equation in one variable in x. Here is variable is x, here is variable y. So this is one variable equation and linear equation because the degree of x is 1 and degree of y is 1. So this is a linear equation of one variable. But here we write an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, whereas a not equal to 0, b is not equal to 0 is called a linear equation in variable 2. So this is important part for two variable of equations. So here a not equal to 0 and b not equal to 0. Am I clear here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. Yes, sir. जिनको नहीं समझ में आया है वो अपने लैंग्वेज में समझ लें कि हमने यहाँ लिखा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल का नाम x है, दूसरे वेरिएबल का नाम y है। अगर हम a इक्वल टू 0 करते हैं तो देखते हैं कि x एलिमिनेट हो जाता है, तो केवल एक ही वेरिएबल बचता है, यहाँ रिमाइंडर बचता है y। ये वन वेरिएबल का हो गया। सिमिलरली अगर b इक्वल टू 0 करते हैं तो y 0 हो जाते हैं, मतलब y का वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। ax प्लस c इक्वल टू ये क्या हो गया 0। इस प्रकार देखते हैं ये भी वन वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, लेकिन मैंने तो लिखा ये इक्वेशन टू वेरिएबल का है। इसका मतलब ये क्या ना a 0 हो सकता है ना b 0 हो सकता है। लेकिन अगर if we put or a equal to 0 and b 0 at the same time, अगर a और b दोनों 0 हो जाए तब क्या होगा, एक और जूम होने वाली बातें हैं। c इक्वल टू 0 कांस्टेंट 0 होगा, मैं भी कांस्टेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या ये इक्वेशन होगा c इक्वल टू 0? Is c equal to 0 an equation? No, No. sir. Why? Because here there is no any variable. Neither नो x सर, ना ही nor वन का y. वेरिएबल है, ना ही सर टू Equation का। there is only one variable. Must required one variable. एक इक्वेशन में कम से कम एक वेरिएबल होना ही चाहिए। एक भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इक्वेशन ही नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा ना तो a 0 होगा ना तो b 0 होगा, और a b 0 तो होना ही नहीं है किसी भी इक्वेशन में। तो a 0 हो जाएंगे तो वन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगा, b भी 0 हो जाएंगे तो वन वेरिएबल हो जाएगा, दोनों 0 होगा तो इक्वेशन होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग टू वेरिएबल में a b 0 नहीं कर सकते हैं। हाँ, वन वेरिएबल में अगर टू वेरिएबल के इक्वेशन को अगर वन वेरिएबल का बनाना है तो a या b को 0 कर लेंगे। ओके, समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब मैं इसके आगे टॉपिक पे चर्चा करूंगा। स्क्रीनशॉट जिनको आवश्यकता है ले सकते हैं। Examples of linear equations. Examples of linear equations. For a equal to 1, b equal to 1 and c equal to 1. This becomes to 1 into x, 1 into y plus 1 equal to 0. This can be written as x plus y plus 1 equal to 0. This is one example of the linear equation of two variable. If we put a equal to minus 2, b equal to plus 2 and c equal to 0, thus equation becomes to minus 2 into x plus 2 into y plus c. In place of c we put 0. This becomes to minus 2x plus 2y equal to 0. This is another equation of linear equation. समझ रहे हो इसको कि Yes, मैंने sir. क्या कहा कि अगर a equal to 1 रखते Yes, sir. हैं, b equal to 1 रखते हैं, c equal to 1 रखते हैं, तो 1 into x 1 into y plus 1 equal to 0 होंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होना है, सेम नंबर मिलेंगे हमको, सेम वेरिएबल मिलेंगे। नो सर। x plus y plus 1 equal to 0 हो गए। लिनियर इक्वेशन के एक एग्जांपल हो गए।
अगर a का वैल्यू -2 रखता हूँ, b का वैल्यू +2 रखता हूँ और c का वैल्यू 0 रखते हैं, तो एक दूसरा इक्वेशन मिलता है। वो क्या मिलता है? -2x + 2y + 0 = 0। दैट इज, इसको अगर लिखा जाए तो -2x + 2y = 0, एक दूसरा इक्वेशन मिला। इसका मतलब है कितने लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं इससे? हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन? Infinitive. इनफाइनाइट। Infinitive. जितना वैल्यू बढ़ते जाएंगे उतने इक्वेशन मिलेंगे। तो दिस इट मींस व्हाट? इट मींस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ द Sir. लीनियर इक्वेशंस। यस, सर 0 को छोड़ के सर कोई भी नंबर लगाएंगे तो कोई आएगा दूसरा इक्वेशन? ए और बी में ए और बी का वैल्यू 0 नहीं लेंगे 2 वेरिएबल के लिए, सी का वैल्यू 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यस, ठीक है सर। एनी डाउट? नो सर। तो इस प्रकार ये क्या है? फैमिली ऑफ इक्वेशन, फैमिली ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब बात रहा इस इक्वेशन का नाम लीनियर क्यों पड़ा? व्हाई वी कॉल दिस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन? क्यों हम इस इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन कहते हैं? तो इसका रीजन ये है कि इसका लीनियर लाइन से बनता है। लाइन से कौन बना है? लीनियर। लाइन से क्या बना है? लीनियर। तो इसका मतलब है इसका इक्वेशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोला जाए, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे हम XY प्लेन में ग्राफ पेपर पर, तो वो हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या रखा गया है? लीनियर इक्वेशन। इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, हम अभी बताएंगे कैसे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लीनियर इक्वेशन। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन की बातें समझ में आपको आ गई। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने डिग्री होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसके डिग्री कितना है? x और y कितने डिग्री है? पावर कितने दिख रहे हैं? इंटीग्रल पावर x पर कितना पावर है? 1 x और y के पावर 1 है। इसका मतलब इस इक्वेशन का 1 डिग्री का इक्वेशन होगा। ठीक है, सब जगह x और y का पावर 1 होगा, तो ये क्या हो गया कि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। समझने वाली बातें हैं, इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहली बात, आप अब इसका जानिए, कुछ नोट बातें लिख दीजिए। डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन दैट इज लीनियर इक्वेशन का डिग्री क्या होगा? 1, चाहे वो 1 वेरिएबल पे हो या 2 वेरिएबल पे हो। अब सॉल्यूशन होता क्या है? तो उसको हम बात बताते हैं। पहले ग्राफ लिखो, सॉल्यूशन के बारे में डिफाइन हम करेंगे, उसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन, स्ट्रेट लाइन, वो लाइन कैसे भी हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इसके ग्राफ हो गए। ओके, ये सब नोट की बातें हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, आगे बता रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? आयुषी कुमारी? नो सर। नो सर। अब मैंने बोल दिया आपको इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो आपने मान भी लिया। क्यों मान लिए ना? नेहा आनंद, प्लीज ओपन योर वीडियो। यस सर। यस सर। तो कैसे मान लिए? मैंने कहा ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हाउ कैन यू प्रूव इट? सर ड्रॉ करके। हाँ, ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ आपको पहले ही बताया गया होगा। हम किसी एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल ले लें, इसी इक्वेशन का ड्रॉ कर दें हम। यस सर। सर इसी का कीजिए। इसी का अगर करते हैं। आप एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़े हो, इसको पहचानते हैं आप? यस सर। यस सर। यस सर। नहीं होता है। अब ये बताइए, ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोला गया, और इसको क्या बोला जाता है? वाई। वाई एक्सिस। एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर अगर हम मूव करते हैं तो क्या वाई की ओर चलते हैं क्या? हम यहां से यहां आएंगे तो क्या वाई की ओर गए? नो सर। नो सर।
एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होगा? 0 0। उसी प्रकार y एक्सिस पर x क्या होगा? 0 0 बस क्वेश्चन लिखा है, लिखेंगे एट एक्स एक्सिस वी हैव लिख देंगे, ये इक्वेशन है एट एक्स एक्सिस, इतना ही इंफॉर्मेशन काफी था। एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 जब करते हो तो क्या देखते हो कि ax प्लस b इंटू 0, तो y का वैल्यू 0 बिठाएंगे तो b इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब है x इक्वल टू क्या होगा, ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस c। इसका मतलब हो जाएगा कि आप बोल सकते हो x इक्वल टू माइनस c बाय a। अब दो नंबर माइनस c बाय a मिलेंगे। अब ये इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं एफ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्लियरली इक्वेशन, इसको 1 मान लो, 1 कट्स एक्स एक्सिस एफ, एक्स को किस पर कट करेगा माइनस सी बाय ए, और y क्या हो जाएंगे y 0 हो जाएगा। अभी तुमने बताया है कि जब y 0 है तो x माइनस सी बाई ए है, इसका मतलब माइनस सी बाई ए जब x है तो y क्या है 0 है। अब दूसरा बात करते हैं कि एट y एक्सिस पर क्या होता है, y एक्सिस पर क्या होता है x is equals to 0 सर x इज इक्वल टू 0। 0, x इक्वल टू 0। अब जब यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 0 प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0। 0 जैसे ही x पुट करोगे तो 0 इनटू a that is 0, that is by plus c equal to 0। तो by is equal to implies that minus c implies that y equal to minus b by c। आप रियल नंबर पढ़े हो? यस सर। रियल नंबर पढ़े हो तो आपको पता है कि एवरी रियल नंबर इज ऑब्टेन्ड ऑन द नंबर लाइन। यस सर। चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, ओके। सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर पर ऑब्टेंड कर सकते हैं प्रोसीजर के जरिए। सर y is equals to minus c by b, y is equals to minus c by b ना। हाँ माइनस सी बाई बी, ओके माइनस सी बाई बी है। तो इस प्रकार जो है हम क्या कर सकते हैं कि एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, एक्स वाई प्लेन लिया। अब ये नंबर सर थोड़ा बोर्ड इधर दिखाइए ना। क्या बोले, बोर्ड थोड़ा इस साइड दिखाइए ना। अब सही है, यस सर। ग्राफ दिख रहा होगा तुम लोगों को? यस सर। अब क्या देखते हो, हमको ये बताओ ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव। आइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कैसे? अगर b 0, अगर b माइनस 1, अगर b माइनस 1 हो जाए तब तो माइनस और प्लस हो जाएंगे। b निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, b पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव रहेगा। b c दोनों अगर निगेटिव हो तो कुछ भी संभव है ना। यस सर। यस सर। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कैसा, किसी भी तरीका से हम इधर लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मालूम नहीं है, लेकिन रियल नंबर पर कहीं तो मिलेगा। यस सर। नंबर जो है अगर मान लिया कि यहाँ पर एक नंबर मिलेगा, ये एक नंबर है, पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं हम, डायरेक्शन नहीं शो कर रहे हैं, एक्स वाई किधर भी हो सकता है, तो हम इसको पॉजिटिव तरह मान लेते हैं। पॉजिटिव मानते तो एक्स एक्सिस पर कोई मिलता, अगर तुम निगेटिव मानते तो इधर मिलता। चलो अगर निगेटिव ही मानते हैं, तुम्हारे की तरफ से ही निगेटिव मानते हैं, तो वाई एक्सिस को काउंट करेगा। क्लियरली लिख दो यहाँ पर, क्लियरली इक्वेशन 1 कट्स वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस पर एक्स आपने 0 बताया और वाई क्या होगा माइनस b बाई बी।
एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा पहले देखो, एक्स एक्सिस को कट करेंगे माइनस सी बाई ए पे, तो माइनस सी बाई ए मान लीजिए यहाँ पर माइनस सी बाई ए, वो निगेटिव हो गए किस डायरेक्शन में हो गए, पॉजिटिव हो गए तो उस डायरेक्शन में हो गए, ये माना गया है। अब माइनस सी बाई ए और ये 0, और अगर निगेटिव मानते हो तो अगर इसको भी निगेटिव ही मान लेते हो तो y इधर होंगे, निगेटिव y इधर होता है, ये तो कंसीडर करते वो कैसा आएगा, y एक्सिस पर x 0 आया है, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. अगर y इधर और डैश मान लो y डैश है, x डैश है, y है, x डैश है, सॉरी x डैश इधर ले लो, x इधर ले लो। अब क्या ये ऑरिजिन है, सारे काउंट ऑरिजिन में पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब क्या देखते हो, इस दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हो तो क्या एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा? Yes, sir. Yes. अगर इस दोनों को निगेटिव कंसीडर किया तो इधर स्ट्रेट लाइन गया, अगर पॉजिटिव कंसीडर करते, अगर इसको पॉजिटिव मान लेते, अगर मान लो सी निगेटिव हो जाता, अगर यहाँ तो पहले से निगेटिव साइन है, अगर सी निगेटिव होता तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता, ये अगर पॉजिटिव माना जाता तो कंसीडर करते हैं इसका वैल्यू पॉजिटिव अगर होता, तो अगर पॉजिटिव होता तो ये इधर होता, सी बाय में इधर होता, और ये जो पॉजिटिव अगर होता तो ये उधर होता। तब हम क्या देखते हैं कि तब मेरा ग्राफ किधर से जाता, तब मेरा ग्राफ इस क्वाड्रेंट से जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और इस क्वाड्रेंट से, तो इसे जाता है। अगर आप एक पॉजिटिव होता दूसरा निगेटिव होता तो ऐसे भी जा सकता था ग्राफ, ऐसे भी ग्राफ जा सकता था। तो इस प्रकार से जब भी बनेंगे तो क्या बनेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, चाहे ये ऐसे क्रॉस कर जाए, ऐसे क्रॉस कर जाए, ऐसे क्रॉस कर जाए, ऐसे क्रॉस कर जाए, ऑरिजिन से पास कर जाए। अब ऑरिजिन से कब पास करते हैं, जब c इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ग्राफ हमेशा ऑरिजिन से पास करता है। अब मैं एक नंबर पर एग्जांपल लूंगा और आपको स्पष्ट पता लग जाएगा जैसा कैसे होता है। आप जो है भी इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए? Yes, sir. Yes, sir. Have you any confusion? No, No, sir. करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन के बारे में और सारी बातें इससे पढ़ेंगे। तो जो नंबर निगेटिव दिख रहा था वो निगेटिव ही हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, वो डिपेंड करता है उसका वैल्यू दिया है तब। अब मान लो एक ग्राफ मैंने लिया 3x + 4y = 12, ये एक लीनियर इक्वेशन मैंने लिया एट x एक्सिस। अभी आपने भी बताया है y क्या होता है, x एक्सिस पर y क्या होता है, 0. बोलो, एक्टिव होकर बोलोगे तो सीखोगे। 0. y = 0 है, इसका मतलब 3x y वैल्यू 0 रखोगे, 4 × 0 = 12, दिस इंप्लाई 3x = क्या हो जाएगा 12, ये तो 0 हो जाएगा, 0 ऐड करो यहाँ करो तो x = क्या होगा 3 × 4 = 12, 4 हो गए 10 पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट मिलेगा, x रहेगा 4 और y क्या रहेगा 0। अब उसी प्रकार हम चले इधर एट y एक्सिस, y एक्सिस पर क्या होता है x = 0, जब x = 0 करोगे तो क्या होगा 3 × 0 + 4 × y = 12। इस प्रकार 0 + 4y = 12, 4y = 12 implies that y = 4 3 = 12, y = 3 आ जाएंगे। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर पॉइंट क्या देखते हो कि आपको y एक्सिस पर पॉइंट क्या मिलेंगे, x तो 0 मिलेंगे, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x तो 0 मिलेंगे और y 3 मिलेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। no, sir. अब इसका ग्राफ थोड़ा सा लेफ्ट में हम इसको ड्रॉ करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यहां पूरा दिख रहा है आपको, यहीं ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ इसका। अब
अब देखो तुम, हमको इसको तुमको 1 2 3 -1 इक्वल डिस्टेंस है, -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 -3 x y x dash y dash 0 दैट इज ऑरिजिन। ये दिख रहे हैं? 1 मिनट के लिए बोर्ड देखिए। अब आपको प्लॉट क्या करना है, 4 और 0। जब x 4 होगा तो y 0 होगा, तो यहाँ 4 ले लो, x 4 है तो y 0 है, तो 4 0 तो यही भी रहेगा ना, y 0 कहाँ होंगे, x पे, y 0 x पर होंगे और x कितना होगा 4, x 4 है तो y 0 हो गया, ये हो गया। फिर क्या है 0 3 x 0 y 3, x 0 y पर होते हैं, x 0 हो गया y पे, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, y +3, तो +3 तो यह होगा ना, तो 0 3। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। No. नो सर, नो सर। स्केल रखते हैं, अगर दोनों को मिलाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन है नहीं, मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन, यस सर। इसका मतलब है ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन प्रूव हो गया ना। ग्राफ, अब इक्वेशन को ग्राफ के डायरेक्शन में लिख दो, जहां कम ज्यादा स्पेस हो वहां पे। अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सर एक बार ग्राफ फिर से सर ये वाला ग्राफ जो बना है एक बार समझा दीजिए। एक बार फिर समझो कि तुमको मालूम है कि 3x + 4y = 12 है, और आप ये भी जानते हो कि x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 0 0। x एक्सिस पर y 0 होता है। तो y जैसे ही 0 करोगे, x एक्सिस पर y जैसे ही 0 करोगे, तो y जब 0 करते हो यहाँ y 0 करोगे, तो 4 × 0 3x, 4 × 0 तो 12, 4 × 0 कितने होंगे, 0 0 3x, तो 3x = 12, ये 3 से मल्टीप्लाइड है, तो लॉग ट्रांसपोजिशन की तरह से इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा क्या होंगे, यस सर, 4 हो जाएगा, 4। 4 0 हो जाएंगे। Yes sir. यस उसी सर। प्रकार मैंने क्या किया, y एक्सिस क्या होता है उल्टा, y एक्सिस पर x 0 यस होते हैं, सर। x 0 जब पुट किए तो 3 × 0 + 4y = 12, ये 0 हो गया, 0 + 4y = 12, 4y = 12, 4 3 जा 12, तो ये y = 3 आ गए। यस सर। इसका मतलब पॉइंट क्या है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, x 0 y 3, तो 4 0 आपको यहाँ मिला, 0 3 यहाँ मिला, दोनों को ज्वाइन कर दिया स्केल से, स्केल रख के पेंसिल से, तो एक लाइन ऑब्टेंड हुआ। उस लाइन को क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन है ये, Straight line. Yes sir. यस सर। पता है ना, यूक्लिड में क्या बताया थे कि 1 पॉइंट से अदर पॉइंट की ओर कितने स्ट्रेट लाइन खींचे जा सकते हैं, देयर इज वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स, मतलब 2 दिए हुए पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, Yes sir. तो यही है, आगे क्लास में आप पढ़ के आएंगे। अब जो अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर अगले दिन आप क्लास पढ़ के आओगे, फिर इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिग्री कैसे बने, और फिर इसके ग्राफिकल मेथड के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इसके वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे और उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अटेंडेंस पर थोड़ा ध्यान दे दें। अगर किन्हीं को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अदिति सुमन, आदित्य कुमार, आदित्य रंजन, Present sir. आलोक राज, प्रेजेंट सर। अमन कुमार, प्रेजेंट सर। अमन कुमार न्यू, अनुप्रिया, Present sir. अनुराधा, Present sir. अपूर्व कृष्णा, आयुष कुमार, आयुष राज, आयुषी कुमार,
दीपशिखा, Present, sir. दीपशिखा, Present, sir. दृष्टि Present, कुमार, sir. हर्ष कुमार, Present, sir. हेमंत कुमार, खुशी मिश्रा, Present, sir. किशन कुमार, Present, sir. कृष्णा कुमार, कुलदीप कुमार, एमडी आफत, एमडी आफत, नेहा आनंद, यस सर। निधि कुमार, Present, sir. नियति कुमार, प्राची कुमार, प्रिया कुमार, प्रियांशु, प्रियांशु राज, प्रिया राज, रघुवीर, राहुल कुमार, Present, sir. रजनीश कुमार, Present, sir. रत्न प्रिया, Present, sir. रेशमी सर हम लोग खातून, जा सकते हैं। Present, sir. ओके, रूपाली कुमार, साक्षी कुमार, Present, sir. साक्षी प्रिया, Present, sir. साक्षी राज, प्रेजेंट सर। सलोनी कुमार, सौम्या, Present, sir. सौरभ कुमार, शुभम रॉय, सिद्धि भारती, Present, sir. Present, sir. सोनम कुमार, Present, sir. सोनू कुमार, Yes, sir. स्वानी कुमार, प्रेजेंट सर। सुमंत कुमार, सुप्रिया सिंह, सुप्रिया भट्ट, तनुप्रिया, नवीन काश, Present, sir. तुषार कुमार, Present, sir. वैष्णवी प्रिया, Present, sir. इनका अटेंडेंस छूट गया। सर एमडीएफ का बना नहीं, एमडी अफाक बोले कहा तुम, बना देते हैं। और कितनी का? यहाँ 33 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, केवल 28 के अटेंडेंस बने हैं। एक मैं हुआ, दूसरा, फिर उसके बाद और कहाँ गए? ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे। नाउ यू Sir. लीव। यस, Sir, Asmi, present. नाम? Sir, Asmi. Asmi, you are new girl for Yes, today? sir. Yes, sir. I will join you. Thanks.